आदाब नाजरीन, न्यूज़ 16 डिजिटल में आप सभी का खैर मकदम है। बेंगलोर शहर में विमोचना फाउंडेशन जो कि एक एनजीओ है, सालों से ये फाउंडेशन आवाम की बेहतरी और भलाई के लिए अपनी बेहतरीन खिदमात को अंजाम दे रही है। जी नाजरीन, 50 साल पहले इस एनजीओ की बुनियाद चेयरमैन और को फाउंडर विमोचना फाउंडेशन कुरीन कुमार के ज़ेर सदारत में की गई और इन्हीं की अनथक मेहनतों और कोशिशों से आज भी ये विमोचना फाउंडेशन बड़े ही अच्छे अंदाज में कामयाबी के साथ चल रही है। कुरीन कुमार ये जाना माना नाम, जिन्होंने विमोचना फाउंडेशन को अच्छे कामों के साथ ऊपर लाने में अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। 22 साल इन्होंने नेल्सन मंडेला के साथ जुड़कर बेहतरीन सोशल सर्विसेज के कामों को अंजाम दिया है। सोसाइटी की बेहतरी और भलाई के लिए कुरीन कुमार ने बड़े ही अच्छे सोशल सर्विसेज के कामों को अंजाम दिया है, जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई है, तो कहीं बच्चों को अच्छी तालीम देने की नीयत से भी इन्होंने एजुकेशनल फील्ड में भी बेहतरीन अंदाज में काम किया है। हाल ही में इस एनजीओ इदारे के जरिए से एजुकेशनल पोर्टल सेल्फ हेल्प ग्रुप फ्री मेडिकल चेकअप्स कैंप्स कर्नाटका में लॉन्च किए जा रहे हैं। बता दें कि एक प्रेस मीट के जरिए से ये बताया गया कि इस विमोचना फाउंडेशन ने 3 एग्रीमेंट्स 3 अलग अलग हुकूमत के साथ बनाए हैं। 3 हुकूमत के साथ 3 तरह के एग्रीमेंट को साइन करके इस एनजीओ ने एक प्रोग्राम SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप को लॉन्च किया है, यानी कि हर इलाके के मोस्टली कर्नाटका के कम्युनिटी सेंटर से 5 से 10 खवातीन चुनकर बैच बनाया जाएगा और ये एनजीओ उनको फंड देंगे और इनको इंस्टॉल सेट करके दिया जाएगा। साथ ही साथ इनके स्टॉल में रखने के लिए 200 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स छत्तीसगढ़, राजस्थान और महाराष्ट्र गवर्नमेंट से प्रोवाइड कराया जाएगा, जिससे 30 से 40% का मुनाफा और फ़ायदा ये खवातीन हासिल करके अपने आप को इंडिपेंडेंट बना सकते हैं। आइए देखते और जानते हैं इस खबर की मज़ीद तफसीलात। ನಮಸ್ತೆ, ನಾವು ವಿಮೋಚನದಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಬಂದು ಇವಾಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾಮೂಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ವಿ. ಈಗ ಯಾವಾಗ ವಿಮೋಚನಾ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನಮಗೆ 20 ವರ್ಷದಿಂದ ಮೇಡಮ್ ಎಲ್ಲ ಕರೆದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ತರಬೇತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಥರ ನೀವು ಸ್ಪಂದಿಸಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದ ಕಡೆಗೆ ಒಳ್ಳೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು ವಿಮೋಚನೆಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೇ ಬನ್ನಿ ಮೇಡಮ್ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಥರ ಕೇಸ್ ಆದ್ರೂ ನಾವು ಹೋಗಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ ಈ ಥರ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲ ಬಗೆಹರಿಸ್ಕೊಂಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಅಂದರೆ ತುಂಬ ನಮಗೆ ವಿಮೋಚನೆಯಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿದೆ. ನಾವು ಇವಾಗ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಈಗ ಏನಾದರೂ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ವಿಮೋಚನಾ ಕಂಪ್ನಿಯಿಂದ ನಮಗೆ ಧೈರ್ಯ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಎಲ್ಲೇ ಹೋದ್ರೂ ಕಮಿಷನ್ ಆಫೀಸು, ಸ್ಟೇಷನ್ನು, ಒಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲು, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿ, ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗಲಿ, ಎಲ್ಲೋದ್ರೂ ನಾವು ವಿಮೋಚನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಅಂದರೆ ಸಾಕು, ಹೌದಾ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇದು ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಗೆಹರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ತುಂಬ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆ ವಿಮೋಚನಾ ಕಂಪ್ನಿ ಇದರಿಂದ. ಅನಿತಾ ಮೇಡಮ್, ನಾವು 20 ವರ್ಷದಿಂದನೂ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಗೆ ಅನಿತಾ ಮೇಡಮಿಂದ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯ ಆಗಿದ್ದು ಆ ಮಂಜುಳಾ ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಅನಿತಾ ಮೇಡಮ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಲೇಡೀಸ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬ ಸಾಲ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ತುಂಬ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಡಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಹಲವಾರು ಕಡೆಯೂ ಬಡ್ಡಿ ತೊಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ 10% ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲೋದ್ರೂ. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ತೊಗೊಬೋದು ಅನಿಸುತ್ತೆ. ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಮನೇಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಬರೀ ಎಲ್ಲನೂ ಉಪಯೋಗ ತರ್ಬೋದಲ್ಲ, ದಾರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ. ಹೌದು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಇದಾಗುತ್ತೆ. ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಗೊತ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ನು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬ್ಯಾಚ್ಗಳು ಮಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನೂ ಸೇರಿಸ್ಬೋದು. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ನಾನು ಸುಮಾರು ಒಂದು 7 ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದನೂ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ. 7 ಸಂಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಆಶೀರ್ವಾದ, ಸಮಸ್ತ ಫೈನಾನ್ಸ್, ಉಜ್ಜೀವನ್, ವಾರದ್ದು ಭರತ್ ಫೈನಾನ್ಸ್, SKS, ಗ್ರಾಮೀಣ ಕೂಟ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ. ವಿಮೋಚನಾ ಫೌಂडेशन इज़ ए NGO. दिस हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड 50 साल पहले ये इस्टेब्लिश हुआ है एंड ये हैं हमारे Chairman and co-founder Corinne Kumar. She has dedicated her life entirely for this organization and she has worked almost 22 years with Nelson Mandela in social service. ये इनकी सरपरस्ती में ये इदारा आगाज़ हुआ है
इन्होंने डोमेस्टिक वायलेंस में काम किया है, एजुकेशन में काम किया है, जो थाउजेंड्स ऑफ केसेस इन्होंने सॉल्व किया है। अभी रिसेंटली इन्होंने वी हैव लॉन्च, इस इदारे के ज़रिए वी हैव लॉन्च एजुकेशन पोर्टल, वी हैव लॉन्च सेल्फ हेल्प ग्रुप, वी हैव लॉन्च द फ्री मेडिकल चेकअप्स एट पैन कर्नाटक के बेसिस के ऊपर हमने लॉन्च किया है। फॉर एग्जांपल, आई हैव माय कॉलीग्स हियर, आई एम हेडिंग एज ए CEO, शी इज़ द चेयरमैन, and education is handled by Smita, she is handling and Tabassum is handling the education, healthcare, and Anita is SHG, to empowerment. The concept today, we have the purpose of we meeting today here, we have concluded 3 agreements with 3 different governments. छत्तीसगढ़ हम 3 गवर्नमेंट के साथ हमने आज ये अग्रीमेंट आज साइन करके वी आर लॉन्चिंग, हम ये प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें SHG का मतलब है सेल्फ हेल्प ग्रुप। इसका मतलब ये है हर एरिया में जो मोस्ट डिज़र्विंग कर्नाटका कम्युनिटी सेंटर्स हैं, वहाँ से हम हर एक बैच में 5 लोगों का या 10 लोगों का वुमेन का एक बैच बनाएंगे, उनको हम फंडिंग कराएंगे, उनको हम स्टॉल सेट करके देके उसके अंदर प्रोडक्ट हम छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट और राजस्थान गवर्नमेंट और महाराष्ट्र गवर्नमेंट से ला के देंगे, जिसमें से 30 से 40% वो मुनाफा कमा के सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकते हैं। ये हमारा उद्देश्य था, ये इनका ड्रीम था। हम आगे आज कामयाब हुए हैं इस प्रोग्राम को लॉन्च करने में। प्रोडक्ट क्या रहेंगे? प्रोडक्ट हर चीज़ है हमारे पास, 2000 प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें फूड प्रोडक्ट्स हैं, नॉन फूड प्रोडक्ट्स हैं और कॉस्मेटिक्स हैं। सो हर तरह के प्रोजेक्ट हम लॉन्च करेंगे एंड दे आर बहुत दूर है कंपटीशन, इसमें कंपटीशन नहीं है, क्योंकि जो भी गवर्नमेंट हमें सप्लाई कर रही है वो भी SHG डेवलप प्रोडक्ट है। सो उसके ऊपर वो भी प्रॉफिट ऐड नहीं कर रहे हैं, तो इसमें फैसिलिटेट ईजी से विदाउट एनी कंपटीशन विथ ज़ीरो लिटरेसी दे कैन जॉइन आवर प्रोग्राम, दे कैन कॉन्टैक्ट विमोचना एंड वील टेक द लीड इन प्रमोटिंग देम द सोसाइटी फॉर बेटरमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, क्या प्रोसेस? जॉइन ये है तो ऑलवेज दे कैन अप्रोच हियर टू द ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे अनीता है और उनके साथ को एक ये कंबाइंड टीम है। दे विल असिस्ट फर्स्ट टू मेक द ग्रुप, देन दे विल असिस्ट इन गेटिंग देम द फाइनेंस डन, देन दे विल असिस्ट इन जहाँ पे भी दुकान लगाना है लगा के उनको क्या प्रोडक्ट सूट करता है वो प्रोडक्ट हम उनको, ये सारी प्रक्रिया आप ही हेल्प करेंगे उनको, दुकान कहाँ लगाना है कब सब हम ही करेंगे वो सब विथ ज़ीरो इंटेलेक्चुअल, उनके पास कुछ भी नहीं है। हम उनको गाइड करेंगे, ट्रेन करेंगे, फंडिंग करेंगे और रन करने उनको प्रॉफिट ओरिएंट के लिए हम उनको मदद करेंगे। अच्छा, कितना इन्वेस्टमेंट रहेगा एक ग्रुप के लिए? एक ग्रुप के लिए अगर 10 का ग्रुप है तो 5 लाख का इन्वेस्टमेंट है, अगर 4 का ग्रुप है तो 2 लाख का इन्वेस्टमेंट है, विच इज़ गुड इनफ फॉर देम टू मेक अबाउट 100,000। अगर 4 का ग्रुप है तो 4 लोग अगर 2 लाख रुपये लगाते हैं तो कैसे भी मिनिमम से 1 से 1.25 लाख रुपये और 4 लोग मिलके कमा ले सकते हैं महीने में। अच्छा, ये कैसे 5 लोग मिलके या 10 लोग मिलके एक ही बिजनेस कैसे करेंगे? क्या अलग अलग नहीं, लगाएंगे क्या? अलग अलग होगा। फॉर एग्जांपल, एक गली में 4 लोग डिसाइड करते हैं कि भाई हम 4 मिलके दुकान खोलेंगे, तो हम चारों का अकाउंट खोलेंगे, उनको हम लोकेशन देंगे कि आप यहाँ पे दुकान लगाएं, वो भी हम लगा के देंगे। तो फिर प्रोडक्ट भी हम सप्लाई देंगे, फंडिंग भी हम करेंगे, ताकि वो बिज़नेस रन करे और बच्चों को पढ़ाए, अपनी ज़िंदगी आसान करे। क्या लोकल प्रोडक्ट्स भी उसमें शामिल रहेंगे? गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका अभी प्रोडक्ट उन्होंने डिस्प्ले नहीं किया है, लेकिन जो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट, राजस्थान गवर्नमेंट एंड महाराष्ट्र गवर्नमेंट ऑलरेडी हमारे साथ टाई अप हो चुके हैं, विच आर वेरी वेरी गुड प्रोडक्ट, मार्केटेबल प्रोडक्ट, बहुत अच्छे हैं और कम्युनिटी के लिए काफ़ी फ़ायदा रहेगा ये। सर, ये जो सेवा आप दे रहे हैं ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन की फ्री सेवा है या आपको इसमें कोई मुनाफा इसमें आएगा? बिल्कुल फ्री सेवा है। वी आर नॉट ये NGO, हम प्रॉफिट ओरिएंटेड नहीं है, हम CSR के ज़रिए हम अपना फंडिंग ले रहे हैं। सो CSR जो वेरियस ऑर्गेनाइजेशन से हैं, हम CSR के ज़रिए वी आर सपोर्टिंग दी आवर मूवमेंट। जो भी औरतें इसमें आके शामिल होगी उनके लिए कौन से डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत पड़ेगी जो इससे आपको ज्वाइन कर सकें? बेसिकली उनके KYC डॉक्यूमेंट होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए एंड उनका पैन कार्ड होना चाहिए। सबसे बड़ा चीज़ जो रिक्वायरमेंट है, उन गली में जो भी रहते हैं इनको जानने पहचाने रहना चाहिए कि भी हाँ ये 5 साल से यहाँ रहते हैं, 3 साल से यहाँ रहते हैं। कोई ऐसा ना हो कि कल कोई बंदा आया रुका है
वो पैसे लिए फिर वहाँ से फ़रार हो जाए तो फिर दिक्कत होती है। तो 2-3 रेफरेंसेस की भी ज़रूरत होती है कि हाँ ये 10 साल से रहते हैं, 5 साल से रहते हैं। अच्छा, ग्रुप बनाने की क्या ज़रूरत है? ग्रुप क्योंकि बैंक से जो फंडिंग होती है, ग्रुप इसलिए बनाते हैं कि अगर एक डिफ़ॉल्ट होता है तो 2 रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो तीनों रिस्पॉन्सिबल होंगे। इसमें जैसे सेम लाइक एक गाड़ी के 2 ब्लॉक आउट होते हैं, एक गिरा भी तो दूसरा खींच के लेके जाएगा। दैट इज़ अ कॉन्सेप्ट। जी, विमोचना से जो आप काम करें सेल्फ हेल्प ग्रुप, ऐसे तो औरतों को मदद मिलती है, लेकिन एजुकेशन सेक्टर में विमोचना फाउंडेशन क्या कर रही है? जो डाउन टॉर्डन है, जिनको पे और हमारी लेडीज़ हैं जिनको पढ़ाई नहीं आती, जो घर में बैठी रहती है, कमाने वाला सिर्फ एक रहता है, इनके लिए कैसे मदद कर सकती है विमोचना? इनके लिए हम फ्री एजुकेशन फराहम कर रहे हैं ऑनलाइन, विच इज़ हैंडल्ड बाय स्मिता। आफ्टर मी शी कैन स्पीक फ्यू वर्ड्स ऑन इट। इसमें बच्चों को हम फ्री एजुकेशन ऑनलाइन जहाँ पे बैठे हैं, घर में बैठे हैं तो घर में पढ़ो, मस्जिद में बैठे हैं तो मस्जिद में पढ़ो, मदरसे में बैठे हैं तो मदरसे में पढ़ो, कहाँ पे भी पढ़ो लेकिन पढ़ो। लेकिन उसकी जो फ़ीस होगी जो 1960s में चलती थी वो फ़ीस के बराबर होगी हमारी, ना के बराबर है बिल्कुल। यानी कि महीने में साल भर की उनकी फ़ीस 600 या 1200 रुपये के अंदर उनकी पढ़ाई पूरी हो जाती है। क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाइंग बुक्स, हम प्रिंट मीडिया, जो भी प्रिंट मीडिया का जो माफिया चल रहा है वो उसको हम ख़त्म करने की कोशिश, क्योंकि एक स्कूल बच्चा जब जाता है तो 25 से 30 हज़ार रुपये अपने बुक्स ख़रीदना पड़ता है, उसकी ज़रूरत नहीं है। सो वी आर ब्रिंगिंग ए न्यू सिस्टम, चाहे उसको ज़ेरॉक्स करा के दे दो, चाहे कुछ भी करो, लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट है बच्चे पढ़ ले। ये हमारे लिए स्ट्रगल है अगले 10 साल अगर हम बच्चों को पढ़ा देते हैं तो आने वाली पीढ़ी आफ्टर 10 years दे विल बी जीनियस, because they have come up from a grassroots of education, not from the high. we are not disturbing कोई भी existing इदारा, existing institution, हम किसी को disturb नहीं कर रहे हैं। We are just bothered about इस घर में जो पढ़ा है नहीं पढ़ा है तो पढ़ लो हमारे से। उसके घर में कोई बोलता है मैं आई एम गोइंग फॉर 4 लाख रुपए की कॉलेज में जा रहा हूँ, यू प्लीज़ गो। हमारा कॉन्सेप्ट वो नहीं है। हमारा काम है हर गली के हर रास्ते पे चराग जलाए। हमें पता नहीं है कौन वहाँ पे हमारा दोस्त है या दुश्मन है। सर, ऑनलाइन एजुकेशन में पढ़ने के लिए उसके टैब की ज़रूरत पड़ती है, लैपटॉप की, कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ती है, वो कहाँ से गरीब कैसे लेके आएगा? बच्चे को वो हम एक स्पेशल डिवाइस हमने डिज़ाइन किया है। इस कंपनी का नाम है क्वाडजन, जो आज सारे हिंदुस्तान के अंदर ये एक ही कंपनी है। इसके मालिक हैं CS राव। इन्होंने आज कोई भी आप मार्केट में उठा लो, 15,000 से नीचे लैपटॉप आने वाला नहीं है। ये संस्था जो क्वाडजन, जो नंबर 1 इंडिया की कंपनी है, इन्होंने हमें 8,000 से 10,000 रुपये में एक कंप्यूटर लैपटॉप देने का वादा किया है, विच इज़ गुड इनफ, जिसमें हम एक लैपटॉप के अंदर ग्रेड 1 का डालेंगे पहले साल, फिर ग्रेड 2 पे जब बच्चा पहुंचता है तो हम डिलीट करके ग्रेड 2 का डालेंगे, तो हमें बुक की ज़रूरत, प्रिंट की लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कंप्यूटर बच्चे का 12 साल का एजुकेशन कंप्लीट कर जाएगा। एंड ये कंप्यूटर जो ख़रीद सकते हैं, एबिलिटी है, उनको ख़रीदने बोलेंगे, जो एबिलिटी नहीं है उनको हम CSR के ज़रिए हम उनको फंडिंग कराएंगे, मुफ्त में देंगे। रिगार्डिंग द TV चैनल, आपने जो अभी सवाल किया है, ये हमारे एजुकेशन के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है कॉल्ड आइकर, दैट इज़ एडवांस इंफॉर्मेशन नॉलेजेबल रिसोर्सेस company, which is headed by a team of about 100 to 150 professional teachers. इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ विमोचना टाई अप कर रहे हैं ताकि हमारे जितने भी बच्चे आएंगे उनको पढ़ाएंगे। तो दे आर इंस्टॉलिंग देयर ओन TV चैनल। वो TV चैनल के ज़रिए फॉर एग्जांपल चाहे तुम मदरसा ले लो, मस्जिद ले लो, टेंपल ले लो या चर्च ले लो, जहाँ जहाँ पे बच्चे आज सूरत हाल पढ़ रहे हैं, जो भी उनका एजुकेशन पढ़ा रहे हैं उसके साथ रेगुलर मेन स्ट्रीम का भी वहाँ पे रिले कर देंगे पर्टिकुलर स्लॉट के अंदर। आज जैसे स्मिता जो बता रही थी, बच्चा जो 1 साल में पढ़ने का जो कोर्स है, हम फाउंडेशन कोर्स के ज़रिए उसको हम 4 महीने में वो एक ग्रेड 1 कंप्लीट कर सकता है। और दूसरी बात NIOS से ज्वाइन करने का मतलब क्या है कि अगर 12 सब्जेक्ट हैं NIOS में तो वो 4 सब्जेक्ट भी एग्ज़ाम लिख के दे के ही कैन कम आउट। तो their convenience they can come out in a systematic way. NIOS is nothing but is a government of India open school concept है, which most of the people have not utilized. ये concept is very common in Europe and America. अब यहाँ पे लोगों को
एक अपने मुफाद के लिए इंस्टीट्यूशन एक सिस्टम बना लिए हैं। बच्चा सुबह में 8 बजे से 3 बजे तक जाए, पीछे 25 किलो बैग ढो के जाए, यूनिफॉर्म पहन के जाए, ये सब दिस इज़ नेशनल वेस्ट है। बच्चों को डिसिप्लिन सीखना है, नंबर 1 अपना इंटीग्रेशन कैसा होना वो सिखाना है। एजुकेशन जब मिल जाता है तो ऑटोमेटिकली ही विल कम इनटू द मेन स्ट्रीम। सर मेरा एक सवाल है आपसे, आपने कहा कि किताबें सब लेके जाना, पेपर के बारे में आप कह रहे थे, अगर हर चीज़ ऑनलाइन सीखेगा तो लिखने की प्रैक्टिस चली जाएगी, तो वो क्या करेंगे? करेक्ट, ये फैसिलिटी लैब हमारे ये टैब के अंदर है। जो बच्चा अपना बेसिक ग्रेड 1 पढ़ रहा है तो ही कैन राइट एंड स्क्रिबल जैसे स्कूल में लिखता है। ओनली डिफरेंस हियर इज वी आर नॉट वेस्टिंग द नेशनल रिसोर्सेज। बुक हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, स्क्रिबल किया फेंक दिया। सेम थिंग इन कैन स्क्रिबल एंड अपनी हैंड राइटिंग सुधार सकता है, जो मर्जी आए वो कर सकता है वहाँ पे। ये टैब आप फ्री में देंगे? ये ಫ್ರೀ देंगे बच्चों फ्री को। में। हाँ, ಎಜುಕೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಮವಾಗಿ ಸಿಗುವಂಥ ಹಕ್ಕು. RTE ಪ್ರಕಾರ ರೈಟ್ ಟು ಎಜುಕೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಓದಬೇಕು ಅಂತ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆಯೋ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಬೇಕು ಅದು. ಆದರೆ ಅದು ಎಜುಕೇಷನ್ಗೆ ಒಬ್ಸ್ಟಕಲ್ ಬರೋದು ಅವ್ರ ಫೀಸು. ಅಷ್ಟು ಫೀಸು ಕೊಟ್ಟರೆ ಒಳ್ಳೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲರ ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಈಗ ನಾವು ಫ್ರೀ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಇದರಿಂದಾನೆ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಶಿಕ್ಷಣ ಒಂದೇ ಸಮವಾಗಿ ಸಿಗಲಿ ಅಂತ ನಾವು ನಮ್ಮ ಭರವಸೆ, ಅದು ನಾವು ನಡೆಸಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮದೊಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಆನ್ಲೈನ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮೂಲಕ ತಾವು ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಂತ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಚಾನಲ್ ಥರ ಅವ್ರೇನಾದರೂ ಆ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೋ, ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತಾ, ಹೇಗೆ ನಮಗೆ? ಇದು NIOS ಅಂತ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ, ಓಪನ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅಂತ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಹೇಗೆ ನಾವು ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡು ಓದಬಹುದು. ಈಗ ಒಂದು ದಿವಸದಲ್ಲಿ 1 ಗಂಟೆ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನಾವು ತಗೊಂಡು ಓದೋಕೆ ಆಗುತ್ತಂದರೆ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಎಜುಕೇಷನ್ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಆಗುತ್ತಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗೋ 6 ಗಂಟೆ ಹೋಗೋದಂದ್ರೆ ಬೇಡ. ಟ್ಯಾಬ್ ಸಿಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಗೆ ಆಗುತ್ತೋ ನಮ್ಮ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಕಡೆ ಬಡತನದಿಂದ ಸುಮಾರು ನಮ್ಮ ಮಹಿಳೆಯರು ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಹೋಗಲೇ ಇಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಈ ಕೂಡ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಥರ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ? ಈಗ ಇವರು ಅಜೀಜ್ ಅವರು ಹೇಳಿರೋ ಥರ ನಮ್ಮ ಟ್ಯಾಬ್ ಈಗ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಫುಲ್ ಇಮೇಜಸ್ಸು ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರೋ ಥರ ಒಂದು ಎಜುಕೇಷನ್ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು. ಈಗ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಗ AI ಆಗಲಿ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ, ಹಿಂದಿ ಆಗಲಿ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆಗಲಿ, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಇದೆ. ಒಂದೊಂದು ಅಕ್ಷರಕ್ಕೂ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತೆ. ಆ ಥರ ನೋಡಿ ಅವರು ಸ್ವೈಪ್ ಮಾಡಿ ಆ ಥರ ಓದ್ಬೋದು ಅವರಿಗೆ ಅಂತ. 50 साल से आप ये काम कर रही हैं, आपको इंस्पिरेशन कैसा है? 50 साल से आप ये काम कर रही हैं. It's been a wonderful experience, really. I have, when I think of all the reasons that keep me here and keep me returning here to Tunisia, because I lived in the Arab world for 20 years. I lived in Africa and the Arab world for 20 years. But when I came back here in 2014, I said I must continue with Vimochana, because this is an organization that I started 50 years ago. Started the Center for Development Studies, and then we started Vimochana. So I've been here for the last 50 years, and it has been, the greatest. It's very. I think of myself as we're just a little drop in the ocean. Vimochana, a little drop. हमने सुना कि आपका वक्त गुजरा है अफ्रीकन प्रेसिडेंट जो थे अफ्रीका के, साउथ अफ्रीका के, नेल्सन मंडेला के साथ, जिन्हें नोबेल पीस प्राइज तक भी मिला था. Yeah, it was. आप बताइए उनके साथ आपका वक्त कैसे हुआ, क्या सीखा? It was a great honor to work with Nelson Mandela. I learned so much. I learned how little we are, how small we are, how humble we should be, and how we should be all of these things if we really want to do something in life. To find all that we are looking for outside, to find this inside of us. And that's what Nelson Mandela always told us. You are the strong one. So each one of you here in this room, each one is a strong one. And each one can give so much. And so really from Nelson Mandela I have learnt so much. You can't ask me this in a 2-minute kind of way to talk to me. I have to talk to you for days perhaps about Nelson Mandela and the great person that he was. So it is really a great honor for me to have worked in his organization in Tunisia. I was based in the Arab world, so in North Africa when he was in South Africa, but I worked with him for 20 years when I was there. Yes. Okay, मेरा आखिरी सवाल मेरा आपसे, आपने सारी दुनिया देखी है,
अगर रिसोर्सेज की बात करें तो हमारे देश रिचेस्ट आता है हर तरह के रिसोर्सेज में, मिनरल्स में, साधनों में, लेकिन दूसरे कंट्रीज़ को देखते हैं एजुकेशन में, एम्प्लॉयमेंट में, इंफ्रास्ट्रक्चर में हम बहुत पिछड़े हैं। आपको क्या लगता है इसका कारण क्या हो सकता है? क्योंकि आप लोग अब जैसे लोगों के सब करने की ज़रूरत पड़ रही है। You know, Jean, we are working with people who do not have. We really, this is Vimochana. That's why I did not want the press here, but you need to talk to Aziz, and you need to talk to Smita, and you need to talk to everybody. But you don't need to talk to us, because we are here, and we are here for people. We're really looking at the beating, the battering, the burning of women with acid, with fire. This is our work, our everyday work is this. But our everyday work is also, and you know, meeting Aziz has been it's going to be a tremendous change for the organization also, because what Aziz is telling us is that you need to be known. And we don't think we need to be known, but we need to be known in the way that everybody knows us. You know us, no? Everybody knows us. Yeah. So, and I know everybody, and everybody is so, you know, it's so, we're just so kind of just doing what we have to do. I don't think we're doing any great thing, or we're doing any great work, or, you know, laudable work or whatever. Sometimes when people use this word, I just look behind me and say, what are they really talking about? Really? But we are doing a little work. We're doing what all of us have to do. And we're responding in a very humanistic way. We are not left, or we are not right, and we are not the center even sometimes. I don't know who we are really. But really we are people who have, you know, an ideology of in a kind of looking for another imaginary discourse, another imaginary way to justice, another imaginary way to deal with the justice that we have, not the justice that comes to us through our legal courts, through our lawyers, through our judges. This is a rationalistic justice. This is a justice with judgment. This is a judgment of punishment. But we are looking that if I commit a crime, I would really like to be shown another way to make amends for that crime, like Bilkis Banu. What is Bilkis Banu? You know, and I think of her, all of us cry when we talk of Bilkis Banu, because, you know, some of the women and men especially wanted the people to be rearrested, put into jail again. But our question is, what have they learnt in jail? When they came out of jail, they were patting each other on the back, giving each other mithai, offering them this, smiling, laughing. What did they really learn from the Bilkis Banu case? What has Bilkis Banu learned? What are the people in Manipur going through today? What is the violence of the people in Manipur? And you know, this is what brings us all together. This is what brings us into this kind of room where we say, you are there, and Aziz is there, and all these women are there, and all of us are somewhere also there, because we are trying to make violence against women something that is unthinkable. You know, our grandchildren, perhaps our great-grandchildren, one day would say, you know, my mother was burnt for something. How did that happen? Or what was the burning? What is the beating? What is the battering? Why are women being pushed aside? Why are women being seen as, you know, the other kind of, the other in this whole nationalistic discourse? And I'm talking too much.